Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is the human digestive system. In this chapter we will see how exactly does the human digestive system works and what all organs are involved in this entire process. So concepts to know: nutrition in humans, steps of nutrition in humans, digestive system in humans, the alimentary canal, digestive glands, process of digestion, journey of food and ingestion. Let's begin with the chapter. We have already learned that the human body is made up of a number of organ systems that works together and maintain the stable environment. Some of the organ systems are digestive, respiratory, circulatory, excretory, nervous and a skeletal system. So the entire functioning of the body works upon different kinds of system जिसमें आपके अलग अलग organs involved होते हैं. ये जितने भी आपको systems, organ systems दिखाई दे रहे हैं, digestive, respiratory, circulatory, excretory, nervous and skeletal system, ये आपके systems हैं जिसमें अलग अलग organs involved रहते हैं, which collectively they work together to perform certain functions and एक सेट ऑर्गन सिस्टम आपका अलग अलग ऑर्गन्स के साथ कंसिस्टेड होता है. In this chapter we will study about nutrition, steps of nutrition, organs of the digestive system and process of digestion in human beings. So let's begin with nutrition in humans. The food that we eat helps in growth, maintenance and repair of our body. Different nutrients present in food perform various functions. Nutrients are the substances in food that helps in maintaining body and make it work. The important nutrients present in food are carbohydrates, proteins, fats, minerals and vitamins, and the other two substances, that is water and roughage, although do not supply any nutrient but plays an important role in the process of nutrition. तो human beings को अपनी जितनी भी activities होती हैं या जितने भी organ systems में organs होते हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए कुछ सेट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है. 5 मेन ऐसे न्यूट्रिएंट्स आपके खाने में होते हैं जो आपकी बॉडी को कुछ सेट प्रोपोर्शंस में उनकी जरूरत होती है. दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स. अलग अलग प्रोपोर्शंस होते हैं इनके जितनी आपकी बॉडी को जरूरत होती है काम करने के लिए. किसी भी एक आधे की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की डिजीजेस को आगे की तरफ लेके जा सकती है. इसके अलावा 2 चीजें और होती हैं, पानी और रफेज. न्यूट्रिएंट वैल्यू कुछ नहीं होती है बट ये पांचों न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपको पानी और रफेज इन दोनों की जरूरत भी आपकी डाइट में होती है. Now some important nutrients present in different food are given below. Now let's see carbohydrates आपका कौन से खाने में होता है. Carbohydrates are formed in green plants during the process of photosynthesis. These are the main energy giving nutrients and carbohydrates are the compounds of carbon, hydrogen and oxygen. Apple, banana, potato, dry fruits and green vegetables are sources of carbohydrates. तो photosynthesis का जो process होता है green plants में, उस पूरे प्रोसेस में आपका कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है. आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है. दीज आर द प्राइम सोर्सेज ऑफ एनर्जी. जो काम आप डेली करते हो दिन भर में, जो एनर्जी आपकी बॉडी को मिलती है, मेन सोर्स एनर्जी का आपकी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं. एप्पल, बनाना, पोटैटो, ड्राई फ्रूट्स और जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, पालक या जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उन सभी में कार्बोहाइड्रेट्स होता है. और इन्हीं सभी में से 1 से 2 चीजें आपकी डेली की डाइट में होनी ही चाहिए, अदरवाइज आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो सकती है. अब दूसरे हैं आपके प्रोटीन्स. प्रोटीन्स जो होते हैं आपकी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. मसल्स रिपेयर करना हो गया, ग्रोथ हो गया, ग्रोथ को मेंटेन करना हो गया, ये सारी चीजें आपको मिलती है प्रोटीन वाले खाने से, जिसमें आपका एग्स, नट्स आ जाते हैं, पल्सेस, मिल्क, दही, चीज या मिल्क से बनने वाले जितने प्रोडक्ट्स होते हैं ये सारे आपके प्रोटीन्स में आते हैं. इनमें से भी 1 से 2 चीजें आपकी डेली के खाने में होनी ही चाहिए. देन वी हैव फैट्स. Fats are also compounds of carbon, hydrogen and oxygen. In fats, oxygen content is very less in comparison to carbohydrates. Ghee, butter, fish, liver oil and vegetable oils are examples of fats. अब आपके आते हैं fats. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देते हैं, फैट्स भी आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होते हैं. बट फैट्स में ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी होता है इट इज लेसर एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स. इसीलिए फैट्स आपको चाहिए होते हैं एनर्जी के लिए बट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होते हैं. एक्सेस ऑफ फैट इन योर बॉडी कैन मेक यू ओबीज एंड इट इज वेरी फेटल फॉर योर बॉडी एज वेल. घी, बटर, फिश, लिवर ऑयल, ये सारी चीजें फैट्स में आती हैं बट लिमिटेड क्वांटिटी में ही आपकी बॉडी को चाहिए होती है. देन वी हैव मिनरल्स. मिनरल्स लाइक आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, सोडियम, फ्लोरीन एंड फॉस्फोरस आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी बाय ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी. ईच वन इज necessary. Iron is essential in hemoglobin and calcium and phosphorus is essential for the formation of bones. अब आपके आते हैं मिनरल्स जैसे आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फ्लोरीन, सोडियम, फॉस्फोरस,
ये आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं, बट अगेन इन लिमिटेड एंड सेट क्वांटिटी। इसकी डेफिशिएंसी भी नहीं होनी चाहिए और इसका एक्सेस भी आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए, दोनों ही हार्मफुल हो जाते हैं। जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही चाहिए, स्मॉलर क्वांटिटी। इसमें जो आपका फॉस्फोरस एंड कैल्शियम होता है, इट इज गुड फॉर योर बोन्स फॉर्मेशन के लिए, और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, आयरन चाहिए होता है आपके हीमोग्लोबिन के कंटेंट के लिए। नाउ द लास्ट न्यूट्रिएंट इज विटामिन्स। विटामिन्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी फॉर आवर बॉडी. These do not give energy but are necessary for the maintenance of growth of body. Carrot, sweet potato, spinach, meat, egg, fish, nuts, seeds and vegetables are some sources of vitamins. Vitamins again ये भी आपकी बॉडी को बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, कोई न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती है, बट आपकी बॉडी की ग्रोथ और ग्रोथ की मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कैरेट, स्वीट पोटैटो, स्पिनच, मीट सब चाहिए बट सेट क्वांटिटी में, और बहुत एक्सेस इसका भी नहीं होना चाहिए। The process by which an organism obtains and utilizes nutrients is called nutrition, and the human beings perform holozoic mode of nutrition in which solid and complex food substances are taken in the body. अब आपके ये पूरा प्रोसेस आपका न्यूट्रिशन ही कहलाता है, जिसमें आप खाना खाते हो और आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं आपकी बॉडी को। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट ह्यूमन बींग्स परफॉर्म इज होलोजोइक। सॉलिड और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं एंड फर्दर आपकी बॉडी उसको सिंपलर फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन में break down करती है। Now let's see steps of nutrition in humans. So nutrition in human beings including animals takes place in the following steps. Number one is ingestion. The process of taking food into the body is called ingestion. Second is digestion, the process in which the food containing large and insoluble substances are broken down into small and water soluble substances is called digestion. Third is absorption, the process in which the digested food passes through the intestinal wall into blood streams is called absorption. Fourth is assimilation, the process in which the absorbed nutrients are taken in the body cells and used for the energy growth and repair is called assimilation. And last, fifth is egestion, the process in which the undigested food is removed in the form of feces from the body is called egestion or defecation. It is the last step of nutrition. तो nutrition के टोटल 5 स्टेप्स होते हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग्स न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, असिमिलेट करते हैं और फिर एक्सक्रीट कर देते हैं। सबसे पहले इंजेशन आता है, खाना आप खाते हो, इस पूरे इस सिंपल प्रोसेस आपका खाना खाने का इनटेक का जो होता है इट इज कॉल्ड इंजेशन। फिर आपका वो खाना पेट में जाता है, वहाँ पर होता है डाइजेस्ट, दिस प्रोसेस इज डाइजेशन जिसमें आपका स्टमक इन्वॉल्व होता है। देन दिस फूड गोज इनटू योर स्मॉल इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स अगर आपके खाने में हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अब्जॉर्ब हो जाते हैं, दिस प्रोसेस इज अब्जॉर्प्शन। आफ्टर दैट आपका जो खाना आपका अब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में वो असिमिलेट होता है, यानी कि आपकी बॉडी की अलग अलग पार्ट्स में जहां पर फैट्स, न्यूट्रिएंट्स और ये सारी चीजें चाहिए होती हैं वहां पर ये असिमिलेट यानी कि अब्जॉर्ब हो जाती हैं। देन द लास्ट वन इज इजेशन। इजेशन में आपका जो बिल्कुल लेस न्यूट्रिएंट पार्ट होता है वो आपका बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो लेट्स स्टडी अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम इन humans. The food eaten by us is broken down into simple molecules by the digestive system. Human digestive system consists of two main parts, alimentary canal and other associated glands. अब आपका जो खाना आप खाते हो आपकी बॉडी उसको सिंपलर कॉम्पाउंड्स में ब्रेक डाउन करती है, बिकॉज एज इट इज जो आप खाना खाते हो उससे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन नहीं कर सकती है, तो पहले उसका ब्रेक डाउन होना जरूरी होता है जिसमें आपका डाइजेशन पूरा प्रोसेस फॉलो करता है। इसमें आता है आपका alimentary canal along with some associated glands. Now let's see what is alimentary canal. The human alimentary canal is a long muscular tube measuring about 6 to 9 meters in length. It starts with the mouth and ends with anus. It consists of following organs which help in the process of digestion of food. तो alimentary canal आपका माउथ से स्टार्ट होता है, यहाँ से बीच में आपकी पूरी ट्यूब आती है, बीच में और बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं और एंड होता है आपका alimentary canal सीधे सीधे आपके एनस में। अब यहाँ से आपका जो 5 आपने प्रोसेस पढ़े थे जिसमें आपका इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन आया था, ये पांचों आपके एलिमेंट्री कैनाल से ही एसोसिएटेड है।
Now number 1 is mouth or oral cavity. Then you have pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. ये सारे जो 5 के 6 आपके organs हैं, ये आपके alimentary canal का सिस्टम है और सारे के सारे 5 modes of nutrition को ये फॉलो करते हैं. And then you have digestive glands. The digestive glands associated with the alimentary canal are salivary glands, liver and pancreas. These glands make and store different digestive juices. अब ये 6 organs आपके alimentary canal में आ गए. Along with that your digestive glands, जिसमें आपका liver आ जाता है, stomach आ जाता है, pancreas आ जाता है. एंड ये सारे इन सब में आपके डाइजेस्टिव और कुछ अलग जूसेस होते हैं जो आपके खाने को और ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं. तो लेट्स बिगिन विद द एलिमेंट्री कैनाल. Number 1, first organ of the alimentary canal is the mouth or the oral cavity. The beginning part of the alimentary canal is called the mouth or oral cavity. The parts of mouth are lips, cheeks, tongue, gums, teeth, palate and salivary glands. The mouth is enclosed by lips and cheeks externally and by teeth and the jaws internally. अब आप सबसे पहले आपका एलिमेंट्री कैनाल में आ जाता है माउथ, जिसे ओरल कैविटी भी बोलते हैं. इसमें आपका लिप्स, चीक्स, टंग, गम्स, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स और पैलेट आता है. And then there are 3 salivary glands situated in the oral cavity that pour their secretion as saliva into the cavity. Saliva contains an enzyme called ptyalin which converts starch into maltose. अब 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग तरीके के सलाइवा को सिक्रीट करते हैं. एंड मेन सलाइवा में जो एंजाइम होता है विच इज द टाइलिन, ये क्या करता है, जो आपके खाने में स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको मैल्टोज में कन्वर्ट करके बॉडी के अंदर सिक्रीट करता है. नाउ लेट्स सी टंग किस तरीके से पूरे के पूरे डाइजेशन में या फिर न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं. The tongue is a highly muscular organ which is covered by the help of a mucous membrane. The tongue is found attached to the floor of mouth. It contains various taste buds which help to identify different taste and variety of food. It also helps to push the food towards the teeth for chewing, swallowing and production of voice. तो tongue जो है it is a highly muscular organ जो कि आपकी mucous membrane से covered होता है. इसमें बहुत सारे taste buds होते हैं जो भी आपको मीठा, कड़वा, खट्टा ये सारी चीज़ आपको फील होती है. ये आपके टंग में ही अलग अलग लोकेशंस पे आपके टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं. वहां पर जैसे आपका खाना हिट करता है आपको वो टेस्ट आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो. अलॉन्ग विद दैट आपके बोलने में, किसी भी तरीके के खाना खाने में, चबाने में टंग आपको हेल्प करता है. देन वी हैव टीथ. Teeth are very hard structures which mainly consist of 3 parts, that is a crown, a neck and a root. तो दांत जो होते हैं बहुत strong होते हैं and teeth में भी आपके 3 parts होते हैं, crown, neck and the root. So the crown is covered with enamel which is a very hard layer. Below the enamel layer there is a dentine which is harder than the bone. Dentine encloses cavity known as the pulp which contains blood vessels. तो ये जो आपको दांत का ऊपर का स्ट्रक्चर ये आपको दिखाई देता है, दिस इज द क्राउन जो विजिबल होता है आपको गम्स के बाहर से. इसके बाहर जो व्हाइट कलर की कोटिंग होती है, जो दांतों का कलर होता है या फिर पेल येलो, दैट इज द इनामल. और उसी के इनामल के बिल्कुल नीचे आपका एक हार्ड कवरिंग होती है विच इज द डेंटाइन जो कि बोन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, विच कवर्स अ पल्प जो आप जिसमें आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. Now root of each tooth remains embedded in the jaw while crown with enamel appears above. First set of teeth is called the milk teeth or temporary teeth. These milk teeth are 20 in number. This set begins to arise at the age of 6 to 7 months and fall around at the age of 6 to 12 years. After that, the second set of teeth start to arise which are called the permanent teeth, and this set has 32 teeth in total, 16 teeth in each अपर एंड लोअर जॉ. अब आपके किसी भी एक ह्यूमन बीइंग के पूरे लाइफ टाइम में 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं. स्टार्टिंग में जो बिल्कुल जब बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे 10 से 12 साल की उम्र तक जो दांत उसके पूरी तरीके से आ जाते हैं, दीज आर द मिल्क टीथ और द टेम्पररी वंस. बिकॉज ये टेम्पररी क्यों होते हैं, क्योंकि ये टूट के इनकी जगह पे जो रिप्लेस होते हैं दो ज़्यादा परमानेंट टीथ. ये टूटते हैं, इनकी जगह पे जो दांत आते हैं वो आपके परमानेंट टीथ होते हैं. 16 ऊपर के जॉ में और 16 नीचे के जॉ में. Now let's see different types of teeth.
In human beings, there are 4 types of teeth as given below. Number 1 are incisors. These are the front teeth found in both upper and lower jaws. They are 8 in number, that is 4 in each jaw, upper and lower. And these are chisel shaped and are used for cutting and biting the food. अब सबसे पहले आपके आते हैं इंसिजर. 4 तरीके के दांत कैटेगराइज्ड हैं. सबसे पहले आते हैं इंसिजर्स, जो आपको सबसे फ्रंट पे आपके मुंह में दिखाई देते हैं, जो आप किसी भी खाने को बाइट करने के लिए यूज करते हो. टोटल 8 होते हैं ये, 4 ऊपर के जॉ में और 4 नीचे के jaw में. Second are the canines. These are 4 in number, that is 2 in each jaw. These teeth have sharp and pointed edges. They help in the piercing and tearing the food. अब आपके आते हैं canines. Canines आपके टोटल होते हैं 4, 2 ऊपर के jaw में, 2 नीचे, बिल्कुल इंसिजर्स के साइड में ये होते हैं और ये बिल्कुल आपके edges से pointed होते हैं. Then you have third the premolars. These are also 8 in number, 4 in each jaw. Therefore, they help in chewing and grinding the food. फिर आपके premolars आते हैं canines के साइड में. ये भी incisors की तरह 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, और ये आपके खाने को grind करने के लिए और chew करने के लिए यूज में आते हैं. And then last set is molars. The molars are 12 in number, that is 6 in each jaw. These are large than premolars and they help to crush and grind the food. फिर आपके molars आते हैं, ये भी दोनों jaws में आपके present होते हैं और ये आपके खाने को crush और grind करने के लिए यूज में आते हैं. So there are total 4 types of teeth in human beings. Synthesizing information. The last molar of each side in each jaw is called the wisdom tooth because it appears late, generally between 17 and 20 years of age. When the human body reaches maturity, however, in some people these teeth may not appear at all. This does not mean they have no wisdom. अब आपके जो 20 years की एज तक या कभी कभी उसके बाद भी जो आपके विजडम टूथ होते हैं, या ये भी आपके बिल्कुल लास्ट मोलर्स होते हैं. कुछ ह्यूमन बींग्स में ये आते हैं, कुछ में ये चांसेस होता है कि नहीं भी आए. Now let's see the numbers of types of teeth and the number of teeth in each jaw and what are its functions. ये बिल्कुल समरी है जो ऊपर हमने अभी डिटेल में पढ़ा था. So incisors lower jaw में 4 होते हैं, upper jaw में भी 4 होते हैं, which makes it a total of 8. इनका function होता है cutting and biting the food. Then we have canines. ये आपके upper jaw lower jaw दोनों में 2 होते हैं, which makes a total of 4, and its functions is piercing and tearing the food. Then we have premolars. These are 4 and 4 in upper and lower jaw, which makes it a total of 8, and its functions are chewing and grinding the food. And last ones are molars. These are 6 in each jaw, that is 6 in upper and 6 in lower jaw, which makes it a total of 12, and the function is chewing and grinding and clenching. So these are different kinds of teeth that a human being possess. Dental care. We can keep our oral cavity healthy by adopting simple steps of cure as given below. Number 1, we should clean your teeth with a brush in the morning and before going to bed at night every day. We should not eat or drink too hot or too cold food or drinks. We should rinse your mouth with water after every meal. We should not eat chocolate, sweets and other sugary products in excess. अब किस तरीके से आप अपने दांतों की केयर कर सकते हो, बिकॉज नहीं तो उम्र से पहले ही दांत झड़ने लग जाते हैं या खराब हो जाते हैं. डेली 2 बार ब्रश करना है, सुबह और रात को सोने से पहले. स्वीट, चॉकलेट, शुगरी आइटम्स, बहुत ठंडा, बहुत गर्म, ऐसे फूड आइटम्स हमको खाने ही नहीं है. शुगरी आइटम्स जैसे चॉकलेट्स वगैरह होती हैं वो आपको लिमिट में ही खानी चाहिए और रात में तो बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए. और बाई चांस खा ली है तो ब्रश करके ही सोना है, अदरवाइज दांतों में कैविटी लग जाती है. सो बाय डूइंग दिस आप क्या कर सकते हो, अपने दांतों को जो आपकी ओरल हाइजीन होती है उसको आप मेंटेन करते हो. हेल्थ लिटरेसी. When we eat sweets or other sugar products and do not clean our mouth properly, many harmful bacteria grow in our mouth. These bacteria break down the sugars present due to leftover food and release acids. The damage caused by the acids to the teeth is called the tooth decay. It results in the toothache and tooth loss may result ultimately. अब ये जो आप खाना खाते हो, आपको खाने के बाद मुंह धोने के लिए, कुल्ला करने के लिए, रिंस करने के लिए, रात को खाने से पहले ब्रश करने के लिए इसलिए बोला जाता है बिकॉज आपके माउथ में बैक्टीरियाज ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. ये खाना जब आप रात को आप खाते हो जो दांतों के बीच में फंस जाता है और आप बिना ब्रश करे सो जाते हो बिकॉज रात भर आपका मुंह रहता है बंद, तो बंद मुंह में वो बैक्टीरियाज और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं और आपके फूड आइटम्स में क्या करते हैं, ये शुगर जो प्रेजेंट होता है उस पर वो बैक्टीरिया जब लगना शुरू करते हैं वो एसिड्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके दांत होने लग जाते हैं खराब. एंड अल्टीमेटली इसको भी अगर आपने ठीक नहीं करा टाइम से तो दांत सीधे फिर
झड़ने लग जाते हैं. दैट इज वाई 2 times a day ब्रश करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट इन द एलिमेंट्री कैनाल इज द pharynx. Pharynx is a funnel-shaped passage where food channel crosses with the air channel. The soft and chewed food from mouth passes to the pharynx, which enters into a long tube-like structure called the esophagus. अब pharynx आपका इस रीजन में आ जाता है. यहाँ से आपका जो च्यूड सॉफ्ट खाना होता है वो pharynx से होते हुए आपका फूड पाइप में एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है पूरा यहाँ से, जिसको हम या तो फूड पाइप या फिर esophagus बोलते हैं. वहाँ से ट्रैवल करते हुए सीधे जाता है आपके पेट में. तो लेट्स डू एन एक्टिविटी 1. Aim to study the number and types of teeth in an adult human. Materials required: a mirror and an adult partner. Procedure: observe your teeth in a mirror and count them. Note various types of teeth. Ask your partner to open her or his mouth and count the various types of teeth. तो एक एडल्ट को अपने सामने खड़ा करिए, शीशा लीजिए, अपने दांतों को भी काउंट करिए मुंह खोल के, और अपने जो आपके साथ में आपके एडल्ट पार्टनर हैं उनको उनके भी माउथ में देखिए कितने दांत हैं, किस टाइप के हैं, वो आपको यहाँ टाइप लिख देना है. इंसिजर्स है, कैनाइन्स है, मोलर्स है या प्रीमोलर्स हैं, और कितने नंबर्स हैं दोनों जॉज में वो भी आपको यहाँ पे लिख देना है. एक साइड पे आपके अपने दांत, दूसरी साइड पे जो आपके एडल्ट पार्टनर जो भी आपने चूज करा है उनके दांत. Activity 1. Aim to study the number and types of teeth in an adult human. Materials required: a mirror and an adult partner. Procedure: observe your teeth in a mirror and count them. Note various types of teeth. Ask your partner to open his mouth and count the various types of teeth. The third is the esophagus or food pipe. It is a tube-like muscular structure about 25 centimeters long and allows the food to pass through it to the stomach. The food slides down in the esophagus by contraction and relaxation of its muscular walls. This process is contraction and relaxation of muscles is called peristalsis. Peristalsis forms a wave-like motion pushing the food along with the gut to the stomach. अब आता है आपका esophagus which is the food pipe. इस region में ये located होता है, यहीं से खाना आपका पास होते हुए stomach तक जाता है. जैसे ही आप खाना डालते हो esophagus आपका contract करता है और relax करता है. ये पूरा का पूरा जो process होता है it is called the peristalsis, और इसकी वजह से ही आपका खाना push होते हुए नीचे आपके stomach तक पहुंचता है. Then we have finally the stomach. The stomach is a sac-like thick-walled structure situated below the diaphragm. It is the widest part of the alimentary canal. The food is digested partially in stomach. Stomach has 4 different regions as cardiac, fundus, body and pylorus. अब आता है आपका stomach. ये आपका एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट ऑर्गन होता है, यहीं पर आपका खाना जाके पहुंचता है. इसमें भी आपके 4 डिफरेंट रीजन्स होते हैं आपके स्टमक में. वन इज द कार्डियक, देन द फंडस, देन द बॉडी एंड द पाइलोरस. The walls of the stomach consist of millions of gastric glands which secrete gastric juices containing 2 digestive enzymes, pepsin and renin. Only in infants, and some diluted hydrochloric acid HCl for the digestion of food. The food through the peristaltic movements proceed from cardiac region towards the pylorus region after digestion. अब ये जो आपकी स्टमक की वॉल्स होती हैं, ये बिल्कुल ये वाली जो वॉल्स होती है इसमें आपके बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन एंड द रेनिन. रेनिन सिर्फ आपके इन्फेंट्स यानी कि छोटे बच्चों में ही देखा जाता है. एंड सम डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. हेल्थ लिटरेसी. Sometimes when your stomach is overfilled with food and the opening at the upper end of the stomach opens due to muscular contraction that results into throwing out of contents through the mouth. This is known as vomiting. और कभी-कभी बहुत ज़्यादा एक्सेस में हम खाना खा लेते हैं या फिर हमारा पेट जिस फूड आइटम को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है वो वापस एसोफेगस से होते हुए आपके मुंह के थ्रू वही खाना बाहर आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं vomiting. Now next in the alimentary canal is the small intestine. The small intestine is very long tube. It is about 7.5 meters length and 2.5 centimeters width. It is a coiled tube which has 3 main parts, that is duodenum, jejunum and ileum. अब आपके small intestine में भी अराउंड आपका 7.5 से 2.5 सेंटीमीटर विड्थ तक होता है. coiled tube होती है ये आपकी, एंड ये भी आपकी 3 पार्ट्स में होती है. एक होता है duodenum, then you have jejunum and then you have ileum. Number 1 is duodenum.
It is the uppermost part of the intestine, just after the stomach. It is a C-shaped structure. It secretes secretion from liver and pancreas through a common bile duct. अब सबसे पहले आपका duodenum आता है, stomach और इंटेस्टाइन, जहां से आपका स्टमक खत्म होकर इंटेस्टाइन शुरू होता है वो आपका पार्ट ड्यूडेनम होता है, सी शेप स्ट्रक्चर होता है। और लिवर और पैंक्रिया से, लिवर से बाइल जूस और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस जो रिलीज होता है खाने के डाइजेशन के लिए, वो आपका बाइल डक्ट से होते हुए ड्यूडेनम में ही आपका पहुंचता है। देन यू हैव सेकंड द जेजुनम. It is the next narrower part of about 2 meters in length. अब आपका जेजुनम आता है, ये अराउंड 2 meters होता है लेंथ में. नेक्स्ट नैरो पार्ट होता है आफ्टर ड्यूडेनम. एंड द लास्ट वन इज द इलियम. इट इज द लास्ट एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. इलियम लास्ट पार्ट है एंड इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन. The inner lining of ileum has many finger-like projections called the villi. The singular is willis. अभी जो आपका लास्ट इलियम वाला पार्ट होता है, इसी में आपके फिंगर-like projections होते हैं, which is called the villi. और ये आपके खाने और न्यूट्रिएंट्स को पास करवाने में, स्मूथली पास करवाने में हेल्प करते हैं. The villi enormously increase the surface area of intestine to allow maximum absorption of the digested food. Between the villi are the small holes through which the intestinal juices is secreted by its glandular cells and is poured into the ileum of the intestine. अब ये villi क्या करते हैं, ये आपके इंटेस्टाइन का सर्फेस एरिया इंक्रीज करके जो भी आपके खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अब्जॉर्प्शन को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं. The small intestine serves both for digestion and absorption. It receives the two digestive juices, that is the bile from the liver and through the hepatic duct and pancreatic juice from pancreas. अब small intestine आपका दो functions करता है. One is the digestion and another one is the absorption. अब ये आपके liver से आता है bile juice, hepatic duct से, and then you have pancreatic juices from the pancreas. दोनों से ये आता है and आपका खाना ये digest करता है small intestine में. Intestinal juice secreted by the walls of intestine contains a mixture of अब ये देखिए आपका पेप्टिडाइसिस आ गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट द एरिस्टिन ऑल्सो, एंड दैट कन्वर्ट्स रिमेनिंग पेप्टाइड्स इनटू अमीनो एसिड्स, maltase to digest maltose into glucose, lactase to digest lactose into glucose, and galactose and sucrose to digest sucrose into glucose, and fructose and some traces of lipase to digest fats into fatty acids and glycerol. अब intestines में आपके इंटेस्टाइनल वॉल्स भी आपकी बहुत सारे जूसेस को सिक्रीट करती है. ऑल्सो हैज सर्टेन मिक्सचर्स ऑफ पेप्टिडेसेस, जिसको हम एरिप्सिन भी बोलते हैं, जो आपके पेप्टाइड्स को, आपके खाने में ही सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है, इंक्लूडेड होती हैं. पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, मैल्टोज को कन्वर्ट करता है ताकि अब आपके मैल्टोज को ग्लूकोज में आपका कन्वर्ट हो सके, मैल्टोज को डाइजेस्ट करता है, लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है ताकि लैक्टोज आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, और आपके गैलेक्टोज में सुक्रेज को डाइजेस्ट करता है ताकि सुक्रोज आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए. फिर फ्रक्टोज आता है जो आपके फ्रूट्स वगैरह में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, और ये सारी चीजें आपकी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में बिकॉज ऑफ ऑल द जूसेस दैट आर प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन्स. नाउ नेक्स्ट इज द लार्ज इंटेस्टाइन. The large intestine is about 1.5 to 1.8 meters long and is divided into 4 main parts, that is cecum, vermiform, appendix, colon and rectum. The cecum is situated at the junction of the small intestine and large intestine. It is a small pouch which is poorly developed. The vermiform appendix is a small structure that arises from the cecum. The U-shaped colon is continuous with the cecum and is situated in the right side of the abdominal cavity, and the rectum is the last part of the large intestine which is situated in the true pelvis. It is about 20 centimeters long, which opens outside by the opening called anus. अभी लास्ट आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन. इसमें भी आपके 4 मेन पार्ट्स होते हैं, केकम, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कोलन एंड रेक्टम, जो फाइनली आपके अनअब्जॉर्ब्ड खाना या पानी जो होता है आपकी बॉडी में वो आपका जाता है फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में. यू शेप्ड कोलन होता है, ये आपका नीचे रेक्टम से कनेक्टेड होता है. रेक्टम की जो ओपनिंग होती है वो आपकी एनस होती है, जो आपकी बॉडी के बिल्कुल बाहर सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट कर देती है. Synthesizing information. Cecum is the site of cellulose digestion in grass-eating mammals as it harbors cellulose digestion bacteria, but in man it has no function as it is reduced and does not have bacteria which release cellulose digesting enzyme, the cellulase. Such organs which have no function in the body are called the vestigial
ऑर्गन्स। अब आपका केइकम आता है, ये आपका सेल्यूलोज डाइजेशन का साइट होता है जो आपके ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो हर्बीवोर्स होते हैं उनमें देखा जाता है। अब ह्यूमन बींग्स में ये होता नहीं है, तो इस ऑर्गन का कोई यूज हमारी बॉडी में है नहीं, और ऐसे ऑर्गन्स जिनका फंक्शन कुछ नहीं होता है बट स्टिल दे एग्जिस्ट आर नोन एज द वेस्टिगियल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। लेट्स डू अनदर एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 2। The diagram of human digestive system is given alongside। आपको ये साइड में आपका पूरा का पूरा digestive system का organ आपको दे रखा है, डायग्राम है। You have to label its different parts and name of the organs from where the digestion of food starts, complete digestion of food occurs and the bile is secreted। ये तीन चीजें हैं आपकी। डाइजेशन आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, बट एक्चुअल द डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स इन द स्टमक। कंप्लीट डाइजेशन आपका खाना कहाँ होता है, तो इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और बाइल सिक्रीट होता है आपके लिवर से। ये तीनों चीजें आपको लिख देनी है जो आपसे सवाल पूछे गए हैं, और जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको लेबल करने हैं। Activity 2. The diagram of human digestive system is given alongside. First, label its different parts. Second, name the organs from where digestion of food starts. Complete digestion of food occur. Bile is secreted. Now let's see the different digestive glands. The digestive glands associated with the digestive system are described below. Number 1 is salivary gland. There are 3 pairs of salivary glands are situated in the mouth. These are the parotid, submandibular and subbilingual. The salivary glands secrete saliva which contains digestive enzyme। तो salivary glands आते हैं आपके माउथ में होते हैं, तो सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से आपका खाना और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, च्यू करने में ईजी होता है और इंजेस्ट करके स्वॉलो करने में ईजी रहता है। इसमें भी आपके 3 तरीके के salivary glands प्रेजेंट होते हैं, द पैरोटिड, द सब मैंडिबुलर एंड द सब बाइंगुअल। अब ये तो तीनों के तीनों salivary glands होते हैं, एक ही काम होता है, सिंपली सलाइवा को सिक्रीट करना, जिसमें आपके एंजाइम्स होते हैं, खाने को और भी ज्यादा सॉफ्ट कर देते हैं। देन सेकंड वी हैव द लिवर। The liver is the largest gland of the human body, situated in the right side of the abdominal cavity below the chest region. The liver secretes bile, a yellowish green and watery fluid. It contains bile salts which help with the digestion and absorption of the fats. Bile salts are like detergents as they break up or emulsify large globules of fats into smaller droplets, making them water soluble। अब आता है liver, ये आपके right side of the abdominal में just below the chest located होता है। It is also one of the largest glands in the human body। ये आपका secrete करता है bile juice, yellow green color का watery fluid होता है, which helps in the digestion and absorption of the food which is present in the small intestine। And then third is the pancreas। It is the second largest gland of the human body after liver. It is a leaf shaped and situated behind the stomach. It secretes pancreatic juices which are poured into small intestine along with the bile. The pancreatic juice is a mixture of enzymes, that is pancreatic amylase, trypsin and stepsin, which helps to digest starch, proteins, fats and nucleic acids etc। फिर आपका आता है पैंक्रियाज, पेट के बिल्कुल पीछे प्रेजेंट होता है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ये आपकी बॉडी में, और ये पैंक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, जो कि आपके पैंक्रियाटिक, जिसमें आपका पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और स्टेप्सिन होता है, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सब चीजों को डाइजेस्ट और अब्सॉर्ब करने में ये हेल्प करता है। Now let's see the process of digestion। The process of converting complex food into simple substances that can be easily absorbed by the body is known as digestion। The digestion of food in human beings involves mechanical and chemical digestion of food। अभी खाना पूरा आपका सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है, अब्जॉर्ब होता है, असिमिलेट होता है, फाइनली सिक्रीट हो जाता है। दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड द डाइजेशन। इसमें आपके मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेसेस पेट के अंदर ही, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर ही इन्वॉल्व रहते हैं। लेट्स सी मैकेनिकल किस तरीके से। सो द मैकेनिकल डाइजेशन इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग एंड चर्निंग फूड इन द माउथ एंड देन इन द स्टमक। अब मैकेनिकल डाइजेशन में आपका आता है जब खाना आप इंजेस्ट करते हो, चबाते हो, च्यू करके उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके पेट तक डालते हो, और पेट में भी इसका चर्निंग का प्रोसेस चलता रहता है। दिस इज द मैकेनिकल डाइजेशन।
Then you have the chemical digestion. It involves processing of food by the enzymes secreted by the digestive glands, stomach and intestine. These enzymes break proteins, fat and carbohydrates into simple substances like amino acids, fatty acid and glucose respectively. अब आते हैं आपके chemical digestion पे, जो आपके finally stomach में, small intestines में होता है, जहाँ पे आपका खाना simpler forms में fat, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स आपके सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट होते हैं. जो प्रोटीन होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, फैट आपका फैटी एसिड में और कार्बोहाइड्रेट्स आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो फाइनली आपकी बॉडी अलग अलग लोकेशंस पे इनको अब्सॉर्ब करती है. तो लेट्स सी द जर्नी ऑफ फूड. The journey of food in human beings from the mouth through ingestion passes through its absorption by the body and ends with the elimination of the undigested food through anus. This process of passing out of undigested food is known as ingestion. तो आपका खाने की जर्नी स्टार्ट वहीं से हो जाती है जहां से आप खाने को खाना शुरू कर देते हो. इंजेस्ट होता है, स्टमक तक जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब होता है, असिमिलेट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आपका वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट होता है और फाइनली आपका एक्सक्रीट हो जाता है एनस के रास्ते से. एंड दिस लास्ट process of the excretion of the waste material through your anus is known as ingestion. This is the entire journey of the food. यही आपको फ्लो चार्ट के मेथड से भी दे रखा है. फूड आप इंजेस्ट करते हो माउथ से, फिर आपका पूरा का पूरा सलाइवा मैस्टिकेशन करता है. देन यू हैव द स्टमक. स्टमक के बाद डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे अब्जॉर्प्शन होती है, असिमिलेशन होता है, लिवर से बाइल जूस आता है, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आते हैं, फिर आपका फाइनली खाना जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड होता है जिसकी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं होती है वो फाइनली आपका एनस के रास्ते से फेसेस होते हुए बाहर चला जाता है. Now let us study in detail what actually happens to the food in different organs of digestive system in human beings. Now let's see the digestion in mouth. Digestion of food starts in the mouth itself. Firstly, teeth chew and masticate the food. After the salivary glands of mouth secrete saliva which make it soft and slippery. The saliva contains an enzyme called the salivary amylase, the ptyalin, and which partially converts starch present in the food to maltose. अब माउथ में आपके salivary glands होते हैं, अलग अलग salivary glands होते हैं, वो secrete करते हैं आपके अलग अलग टाइप के salivas को, juices को. salivary amylase होता है, वहाँ पे mastication होता है and your foods gets churned and chewed. और आपके starch का कुछ पोर्शन ये maltose में कन्वर्ट कर देते हैं. So let's see what happens to the food in the pharynx and the esophagus. The food is swallowed into the pharynx and then passes through the esophagus. The muscles of the esophagus pushes the food towards the stomach. In esophagus, no digestion of food takes place. अब फाइनली यहाँ पे आपका कोई डाइजेशन नहीं होता है, बट माउथ से स्टमक तक जो आपका खाना जाता है इट गोज थ्रू द pharynx and the esophagus, but no digestion process happens here. Now the food has reached the stomach. The food passes from the esophagus to stomach and undergoes further mechanical and chemical processing. The stomach produces gastric juice which contains enzymes, hydrochloric acid and mucus. Any bacteria which may enter the stomach with the food is destroyed by the hydrochloric acid. It also makes the medium in the stomach acidic, which is necessary for the proper action of digestive juices on proteins in the stomach. अब आपका खाना जाता है पेट में. डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस होता है, म्यूकस की वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाता है. यहाँ पर आपके बहुत सारे जो स्टमक होता है वो एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है विच इज एग्जैक्टली नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ योर फूड. बहुत सारे प्रोटीन्स को, फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए आपको ये एसिडिक मीडियम चाहिए होता है. द पेप्सिन्स एक्ट्स ऑन प्रोटीन्स एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोटोसिस एंड peptones. In presence of hydrochloric acid in children, the enzyme renin acts on soluble milk protein, casinogen and converted into insoluble casein. अब आपके पेप्सिन्स होते हैं, आपके स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीन्स को प्रोटेसिस में और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं. अब बच्चों के पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. नाउ देयर इज एन एंजाइम इन द, ये सिर्फ आप ये जो आपका रेनिन एंजाइम होता है ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों में ही देखा जाता है. Now let's synthesize some information. Hydrochloric acid has following functions in the stomach. Number one, it destroys the bacteria entering the stomach through food and thus protects the internal environment of stomach, converts inactive pepsinogene and into active pepsin and provides acidic medium for the enzyme pepsin to act. अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टमक में क्या हेल्प होता है?
खाने से थोड़ा बहुत बैक्टीरिया आपके पेट में चला जाता है, अभी आपके इंटरनल फंक्शनिंग को डिसरप्ट ना करे उसके लिए आपका HCl हेल्प करता है बैक्टीरिया को किल करने में। देन यू हैव द पेप्सिनोजन, इसको एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है एंड इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, ताकि जो आपका पेप्सिन एंजाइम है वो ढंग से अपना फंक्शन कर सके। Mucus protects the lining of stomach from its own secretions of hydrochloric acid. If mucus is not secreted, hydrochloric acid will cause the erosion of inner lining of stomach, leading to the formation of ulcers in the stomach. अब ये जो mucus होता है ये स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि HCl से कोई भी नुकसान ना हो जाए। अगर म्यूकस ढंग से सिक्रीट नहीं हो रहा है, HCl रेगुलर आपके स्टमक के इनर लाइनिंग को हर्ट कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा लंबे प्रोलॉन्ग टाइम के लिए इसी की वजह से एक बीमारी हो जाती है, इसका नाम है अल्सर्स। द मैकेनिकल प्रोसेसिंग ऑफ फूड इज प्रोवाइडेड बाय द peristaltic activity of the stomach. The mechanical and chemical treatment of food change it into partially digested food called chyme. The chyme moves into small intestine after about 3 hours. अब ये पूरा मैकेनिकल प्रोसेस होता है स्टमक में। ये जो आपका HCl, पैंक्रियाटिक जूसेस या जिन भी अलग अलग जूसेस की वजह से आपका फाइनली खाना आपका बहुत सॉफ्ट पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है और ज़्यादा फर्दर ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं काइम। ये काइम फाइनली आपका करीबन पेट से 2 से 3 घंटे के बाद जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, फाइनली क्या करने के लिए, अब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन करने के लिए। नाउ लेट्स सी what happens to the food in the small intestine. यहाँ पे आपका सबसे मेजर पोर्शन होता है डाइजेशन का। Further digestion of the food, the chyme takes place in the upper part of the small intestine. It receives the digestive juices from the liver, pancreas and its own wall. These digestive juices carry out complete digestion of food. अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है स्टमक से जब आपका काइम पहुंचता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में, पैंक्रियाटिक जूसेस, बाइल जूसेस और इंटेस्टाइनल जूसेस की मदद से ये खाना और भी ज़्यादा और सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है और कंप्लीट डाइजेशन आपका यहाँ से ही शुरू होता है। लिवर secretes a liquid called the bile juice which is stored in the gallbladder. It is helpful in the digestion of fats. It converts fats into tiny droplets so that their further breakdown becomes easy. अब लिवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है जो कि आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है। ये जब रिलीज होता है ये फैट को और भी ज़्यादा फर्दर ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, जो कि फैट को अब्सॉर्ब करने में और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। Then we have the pancreas. It secretes the pancreatic juice. Pancreatic juice contains amylase for the digestion of starch, lipase for the digestion of fats and trypsin for the digestion of proteins. अब पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक जूस होते हैं। अब इसमें भी आपके 3 तरीके के अलग अलग जूसेस प्रेजेंट होते हैं। पैंक्रियाटिक जूसेस में एक तो होता है एमाइलेज जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। देन वी हैव द लाइपेज जो फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। देन वी हैव द ट्रिप्सिन जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। Then we have the juices which are present in the small intestine. The wall of the small intestine has glands which secrete ellipsin, maltase, sucrase, lactase, lipase, etc. These secretions contain enzymes for the digestion of various components. By this process, food is digested completely. अब कुछ तो आपका निकला लिवर से बाइल जूस, पैंक्रियास है पैंक्रियाटिक जूसेस। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अपने कुछ जूसेस होते हैं जैसे कि एंजाइम्स होते हैं जैसे आपके एरिप्सिन, मैल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। ये फर्दर आपके खाने के कंपोनेंट्स में रिलीज होते हैं और फाइनल अब्जॉर्प्शन खाने का डाइजेशन यहाँ पर होता है। Now, absorption of digested food also takes place in the small intestine. Villi are densely supplied with blood capillaries through which digested food is transferred to several body parts. This food enters in bloodstream for assimilation in the simplest form of nutrients such as glucose, amino acids, glycerol and fatty acids. अब आपका आता है absorption of digested फूड। ये भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो लास्ट पार्ट होता है इलियम जिसमें आपके विलाई प्रेजेंट होते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। उसके बढ़ने से क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके अब्जॉर्ब होना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आपके ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं जो खाने को अब्जॉर्ब तो करती ही हैं, उसके साथ साथ पूरे ब्लड स्ट्रीम्स में असिमिलेट यानी कि पहुँचाने का काम भी ये करती हैं। नाउ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी इज ग्लूकोज. Its excess amount is stored in the liver in the form of glycogen. The amino acids are used in the synthesis of various structural and functional proteins, and the result of breakdown is the production of ammonia, which is converted into the urea in the liver and excreted out with the urine.
The glycerol and fatty acids also act as the sources of energy when required. Extra fat may also be converted into carbohydrates in the liver for future use of the body. अब आपकी बॉडी जो होती है उनका मेन सोर्स बॉडी का जो एनर्जी का होता है इट इज द ग्लूकोज, जो उनको कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स वगैरह से मिलता है कन्वर्ट होने के बाद. अब ये जो ग्लूकोज होता है ये आपका एक्सेस अमाउंट लिवर में स्टोर हो जाता है. जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन्स के सिंथेसाइजेशन में हेल्प करते हैं. नाउ एक्सेस ऑफ फैट या ग्लिसरॉल या फैटी एसिड्स जो आपके होते हैं ये आपका लिवर स्टोर कर लेता है ताकि बॉडी आपके फ्यूचर यूज के लिए, यानी कि आप कभी कभी ऐसा होता है आप पूरे दिन कुछ नहीं खा रहे हो बट आपको इतनी एनर्जी लो नहीं लगती, आप फिर भी अपना काम कर लेते हो. इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द स्टोर्ड फैट एंड द फैटी एसिड्स जो आपके लिवर में ऑलरेडी होता है, और जिस टाइम पे आपकी बॉडी को एक्सटर्नली कुछ नहीं मिल रहा होता है एनर्जी का सोर्स, तब ये फैट्स आपके रिलीज होते हैं और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. सो दिस एंटायर थिंग्स हैपन, द एंटायर फूड डाइजेशन अब्जॉर्प्शन असिमिलेशन हैपेंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. So let's do another activity, activity 3. Enzymes are the chemical substances present in the body which speed up the rate of chemical reactions. At the end of the reaction, the enzyme remains unchanged and separates from the product of the reaction. In digestive system, there are several enzymes which enhance the rate of digestion processes. Find out the name of the enzymes to help the digestion of these foods. तो carbohydrates, protein और fat आपके अलग अलग enzymes होते हैं. अभी हमने पढ़ा था जिसमें आपके lactase आ जाता है, एरिप्सिन आ जाता है, ट्रिप्सिन आ जाता है, पैंक्रियाटिक जूसेस आते हैं जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जो आपके पैंक्रियाटिक जूसेस में ही प्रेजेंट होते हैं. यू जस्ट हैव टू राइट देयर नेम्स. Activity 3. Enzymes are the chemical substances present in the body which speed up the rate of chemical reactions. At the end of reaction, the enzyme remains unchanged and separates from the product of the reaction. In digestive system, there are several enzymes which enhance the rate of digestion process. Find out the name of enzymes to help digestion of these foods. First, carbohydrate. Second, protein. Third, fat. Now let's see what happens to the food in the large intestine. Some food that cannot be digested and is therefore not absorbed into the blood moves down to the large intestine where the excess water in it is reabsorbed. Due to this, undigested remaining food becomes almost solid and eliminated out as a fecal matter through the anus. अब आपका खाना जो आपकी बॉडी को जरूरत नहीं होती है, कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू उसमें नहीं होती है, वो आपका जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. यहाँ पे जितना भी एक्सेस वाटर होता है उस खाने से वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है और फाइनली एक सॉलिड मटेरियल बचता है जो फाइनली आपके एनस से होते हुए बाहर चला जाता है. Now let's see the summary of digestion of food in human digestive system. So we have the parts, the secretion, the enzymes secreted and the nutrient digested, and what are the product after digestion. So first is the mouth. Salivary glands यहाँ पे होते हैं which secrete the saliva. Ptyalin यहाँ पे आपका एंजाइम secrete होता है, and starch जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो आपका यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, and the product after digestion होता है आपका maltose, यानी कि स्टार्च को ये maltose में कन्वर्ट कर देता है. Then you have the esophagus. कोई सिक्रीशन नहीं होती है, कोई एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, न्यूट्रिएंट भी कोई डाइजेस्ट नहीं होता है और कुछ प्रोडक्ट भी नहीं बनता है, सिर्फ आपका खाना मुंह से जाता है आपके पेट में. Then you have the stomach. Gastric juices और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका यहाँ पे रिलीज होता है. पेप्सिन, रेनिन आपका सिर्फ बच्चों में देखा जाता है. जितने भी आपके प्रोटीन्स होते हैं या मिल्क प्रोटीन आपका जो बच्चों में आपके सिर्फ दूध क्योंकि बच्चे पीते हैं तो रेनिन वहां पर आपका यूज में आता है. एंड देन द प्रोटीन, जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. अब्जॉर्ब करने के बाद, डाइजेस्ट करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट निकलता है इट इज द प्रोटीसेस एंड द पेप्टोन्स. देन यू हैव द स्मॉल इंटेस्टाइन. उसमें आपका आता है बाइल फ्रॉम द लिवर. यहाँ पर आपके कोई ऐसे एंजाइम्स नहीं देखे जाते हैं. फैट्स को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है और फैट्स को ये कन्वर्ट कर देता है. जो प्रोडक्ट आपको निकलता है इट इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है. देन यू हैव द ड्यूडेनम, जो आपका पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का. पैंक्रियाटिक जूस को ये आपका पैंक्रियास से रिलीज करता है.
आपके जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, इट इज द पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंड द ट्रिप्सिन एंड द स्टेप्सिन विच इज द लाइपेज। पैंक्रियाटिक जो एमाइलेज होता है वो क्या करता है, स्टार्च को यानी कि कार्बोहाइड्रेट को अब्सॉर्ब करता है, उसको मैल्टोज में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, उसको प्रोटोसिस, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। लास्टली द लाइपेज विच इज द स्टेप्सिन, ये आपके फैट्स के एमल्सिफिकेशन में हेल्प होता है डाइजेशन में, और फैट को ये कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। देन यू हैव द इलियम विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें आपके इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं। कौन से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, इरिप्सिन जो आपका पेप्टिडेज भी होता है, जो प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स को डाइजेस्ट करता है, उनको कन्वर्ट करता है ये अमीनो एसिड्स में। देन यू हैव मैल्टेज, मैल्टेज में आपका मैल्टोज होता है, मैल्टोज को ये कन्वर्ट करके फाइनली डाइजेस्ट करके बनाता है ग्लूकोज। फिर आता है सुक्रेज, सुक्रेज से आपको ये डाइजेस्ट करता है सुक्रोज, और सुक्रोज को ये कन्वर्ट करता है बाद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। देन यू हैव द लैक्टेज, लैक्टेज ये आपका डाइजेस्ट करता है लैक्टोज, और लैक्टोज फाइनली आपका जो डाइजेस्ट हो जाता है, द प्रोडक्ट विच गेट्स रिलीज्ड इज द ग्लूकोज एंड द गैलेक्टोज। एंड देन द लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें आपका म्यूकस होता है, कोई एंजाइम्स रिलीज नहीं होते हैं। डाइजेशन आपका क्या करता है, कोई डाइजेशन भी नहीं होता है, इट इज जस्ट द लुब्रिकेशन ऑफ द फेकल। वापस से आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, कोई प्रोडक्ट आपका फाइनली निकल के नहीं आता है, इट इज जस्ट द वेस्ट मटीरियल विच गेट्स सिक्रीटेड और एक्सक्रीटेड फ्रॉम द एनस। लेट्स सी व्हाट इज indigestion. Most of humans suffer from the problems like constipation or irregular bowel movements. These problems arise mainly due to the disorders occurring in the process of digestion, ingestion, indigestion of food. Indigestion of food is a common condition which is related to upset stomach. It is also known as dyspepsia. It occurs due to the factors such as overeating, eating too fast, anxiety, inability to digest milk and other dairy products, drinking, smoking and not having enough sleep. तो कई लोगों में कभी कभी बहुत ये जो दिक्कत होती है फ्रीक्वेंट हो जाती है, विच इज़ द अपसेट स्टमक, यानी कि पेट या तो दर्द होता रहेगा, खाना खाने के तुरंत बाद पेट में दर्द होने लग जाता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, जिसे इंडाइजेशन बोलते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ये हो सकता है, जैसे ओवर ईटिंग, ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना, बहुत जल्दी खाना, एंग्जाइटी इश्यूज होते हैं, या कुछ लोगों लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, यानी कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट उनकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, टू मच स्मोकिंग हो जाती है, ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, एंड लास्ट वन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और लीस्ट कंसिडरेट करते हैं लोग इसको, विच इज़ इनफ स्लीप। बॉडी को 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए ही होती है। 3 से 4 घंटे की नींद, अगर बहुत लंबे टाइम के लिए आप कंप्लीट नींद नहीं ले रहे हो तो आपकी बॉडी ढंग से फंक्शन कर ही नहीं पाएगी, ना लिवर बाइल जूस ढंग से सिक्रीट कर पाएगा, लिवर भी आपका खराब होगा, और लिवर खराब होगा तो बाकी डाइजेशन आपका कंप्लीट कभी सही हो ही नहीं सकता। तो सारी चीज़ें ठीक हैं अगर, तो 7 से 8 घंटे की नींद आपको चाहिए ही चाहिए बहुत लंबे टाइम के लिए। अगर लैक ऑफ स्लीप होती है तो आपकी बॉडी ढंग से फंक्शन कभी भी नहीं करेगी, चाहे आपका लाइफस्टाइल कितना ही अच्छा हो। तो नींद पूरी लेनी ही लेनी है। Some other causes of indigestion are irregular food habits like skipping meals or taking food many times a day, not having enough roughage in diet, taking junk food very often and eating too much spicy and fatty food. अब ये कुछ 3 से 4 चीज़ें हैं, ये भी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए 1-2 बार होता है तो बॉडी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, दैट इज़ व्हेन द प्रॉब्लम अकर्स। जब या तो आप दिन में एटलीस्ट 3 टाइम का खाना खाना ही होता है इक्वल इंटरवल्स पे, ब्रेकफास्ट, लंच एंड योर डिनर एट द राइट टाइम, या तो आप अगर अपने मील्स को स्किप कर रहे हो या फिर इन 3 से ज़्यादा बहुत बार खा रहे हो, बहुत फ्रीक्वेंटली अगर आप खा रहे हो, दोनों ही चीज़ें बेकार है। फिक्स्ड इंटरवल्स होने चाहिए, 2 मील्स में 2 से 3 घंटे का गैप भी होना चाहिए, और कंप्लीटली आपको पेट भर के भी नहीं खाना होता है, आधे पेट को खाली ही रखना होता है, तभी आपका डाइजेशन भी प्रॉपर हो पाएगा। रफेज अगर प्रॉपर नहीं है, बहुत ज़्यादा बाहर का आप खाए जा रहे हो, एंड अगर बहुत फैटी फूड या स्पाइसी अगर आप खा रहे हो, बहुत ज़्यादा मसाले भी आपके पेट के लिए अच्छा नहीं होता है। कभी कभी 1-2 बार ठीक है, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है तो वो भी आपके पेट को लॉन्ग रन में खराब ही करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। Health literacy. Sometimes you pass a watery stool frequently. This condition is called the diarrhea. This may be due to infection, indigestion or food poisoning. Diarrhea can be fatal if neglected. In diarrhea, an excessive loss of water and salts from the body occurs, and the patient should be given plenty of boiled and cool water with a pinch of salt and sugar dissolved in it.
even before consulting the doctor. This solution is known as the oral rehydration system, the ORS. It is ready made from easily available at the chemist shop. तो आपका कई बार ऐसा होता है फेसेस आपका सॉलिड होना चाहिए. अगर ये बहुत ज़्यादा वाटरी स्टूल कभी कभी हो जाता है उसको हम बोलते हैं डायरिया या फिर लूज मोशंस. इस केस में क्या होता है, अगर इसको अगर ढंग से अगर हमने नहीं ट्रीट करा तो इससे भी बहुत घातक बीमारियां हो सकती हैं और कुछ कुछ लोगों की डेथ भी इसी वजह से हो जाती है अगर आप नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि बॉडी से इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स और बहुत सारा पानी इसमें रिलीज हो जाता है. तो इसमें डॉक्टर को कंसल्ट करने से पहले ही घर पे भी आप ये कर सकते हो. ORS होता है आपका ओरल रिहाइड्रेशन सिस्टम. पैकेट्स अगर आपके पास रेडीमेड नहीं है तो उबला हुआ पानी लीजिए, गुनगुना उसे करिए, थोड़ा सा उसमें नमक और चीनी डालिए, मिक्स करके उसको पीते रहिए रेगुलर इंटरवल्स पे, ताकि आपकी बॉडी में पानी और नमक की कमी ना हो. Now let's see assimilation. All the absorbed nutrients are not used up immediately by the body, so they are changed into various forms that can be stored until they are needed. This is called the assimilation. अब आपकी बॉडी जितना भी न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती है वो तुरंत ही उसको यूज नहीं करती है. अब अलग अलग फॉर्म्स में ही आपकी बॉडी फैट्स को, प्रोटीन्स को, मिनरल्स को, वाइटामिन को स्टोर कर लेती है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज असिमिलेशन. और जब बॉडी को जरूरत होती है तब वो यूज करने लग जाती है. Now, glucose is converted into glycogen and stored in the liver. When required by the body, the liver converts glycogen into glucose. अब ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर हो जाता है. अगर एक्स्ट्रा होता है तो बॉडी को जब जरूरत होती है इसी ग्लाइकोजन को लिवर रिलीज करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है. Excess of glucose is also converted into fat and stored in the adipose tissues. Fatty acids either provide energy or are stored under the skin as फैट. अब ग्लूकोज अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो भी आपका फैट में कन्वर्ट होकर एडिपोज टिश्यूज में आपका स्टोर हो जाता है. अब फैटी एसिड्स या तो आपको एनर्जी देंगे और अगर बहुत ही ज्यादा आपको आपकी बॉडी में हो गए हैं तो स्किन के नीचे स्टोर हो जाते हैं फैट के फॉर्म में. Amino acids are used for the synthesis of proteins. Excess amino acids are converted into urea, which is removed from the blood by the kidneys in the form of urine. अब अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स के सिंथेसाइजेशन में हेल्प करते हैं. बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड्स अगर हो जाते हैं तो वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो अगेन आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. तो ये यूरिया जो होता है ये आपकी किडनीज से होते हुए यूरिन से बाहर निकल जाता है. Now let's see some healthy eating habits. Some healthy eating habits that everyone should adopt are: never skip breakfast, as skipping breakfast may drain out energy from the body. Eat balanced diet and in moderation. Include fresh fruits and vegetables in diet as they keep the digestive system healthy. Do not consume sugar in large amount, example candies, cookies, sugary drinks and some other unhealthy drinks. Do not eat or food while watching television because this makes us eat more than required. अब ये कुछ आपकी 4 से 5 चीज़ें हैं, जैसे कि आपको अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, उससे आपकी बॉडी का एनर्जी ड्रेन आउट हो जाता है. शुगरी आइटम्स बहुत ज़्यादा नहीं खाने हैं और टीवी देखते हुए नहीं खाना है, क्योंकि टीवी देखते देखते जितना जरूरत है उससे ज्यादा हम खा लेते हैं. All these bad habits lead to weight gain, high cholesterol, high blood pressure and many other dangerous diseases. अगर इन सारी चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं करोगे तो वेट तो बढ़ेगा ही. वेट बढ़ने के साथ साथ आपकी बॉडी के इंटरनल फैक्टर्स भी काउंट होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं. तो अच्छी ईटिंग हैबिट्स को अपनाइए ताकि आपकी बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से फिट रहे. की टर्म्स: absorption, process in which digested food passes through the intestinal into the blood stream. Assimilation process during which absorbed nutrients are taken in by the body cells is used for energy growth and repair. Alimentary canal, a long tubular muscular canal 8 to 10 meter long of varying diameter in the human body. Duodenum, upper part of the small intestine. Digestion, process of breaking down of large insoluble food into small water soluble substances. Digestion, process of removing undigested food out from the body. Ileum, long part of the small intestine. Ingestion, process of taking food in the body. Liver, largest gland in human body which secretes bile. Rectum, last part of the large intestine. Villi, finger-like projections in the inner walls of small intestine, and these are richly supplied with blood capillaries for the absorption of digested food. अब आपकी बॉडी में absorption, assimilation, excretion,
ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, माउथ, इसोफेगस, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे इन्वॉल्व्ड रहते हैं. एंड देन यू शुड ऑलवेज हैव गुड ईटिंग हैबिट्स इन ऑर्डर फॉर योर बॉडी टू वर्क प्रॉपर्ली. Summary. The process by which an organism obtains and utilizes nutrients is called nutrition. The food eaten by us is broken down into simple molecules by the digestive system. Different parts of the alimentary canal are that is mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. Milk teeth start to appear at the age of 6 to 7 months but fall off of around the age of 6 to 12 years. Permanent teeth are 32, incisors 8, canines 4, premolars 8 and molars 12. Food passes through the alimentary canal by peristaltic movements. Stomach is a muscular sac-like structure which secretes HCl and gastric juices. Small intestine is a coiled tube which has three main parts, that is upper duodenum, middle jejunum and lower ileum. In the inner wall of ileum, many finger-like structures are present which are known as villi. Digestive food is absorbed in the walls of small intestine. The large intestine is divided into four parts. The caecum, vermiform appendix, colon and rectum are the four parts of large intestine. Salivary glands, liver and pancreas are the digestive glands. Liver secretes bile for digestion while pancreas secrete pancreatic juices which help in the digestion of फूड. अब आपकी पूरी बॉडी में ये जो आपका खाना स्टार्ट होता है, द इंजेशन, 5 मेन पार्ट्स होते हैं आपके होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, विच इज द इंजेशन, देन डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन. माउथ आपका इंजेस्ट करता है, इसोफेगस से होते हुए पेट में जाता है, वहाँ पे आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है. देन यू हैव द अब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. बाइल जूस आपका लिवर से रिलीज होता है, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूसेस रिलीज होते हैं. फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने में, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. अनडाइजेस्टेड फूड आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे आपका वाटर रीअब्जॉर्ब होता है और सॉलिड फेसेस फॉर्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो आपका कोलन, रेक्टम एंड फाइनली एनस से होते हुए बाहर निकल जाता है. So students, with this we come to the end of this chapter. Just go through this chapter thoroughly and all the exercise questions, please do it.